आज मैं आपको निकरागुआ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सबसे पहले तो उसका झंडा है। आप सोचेंगे सर ये तो कोई इल्यूमिनाटी किस्म का सिंबल है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। द ट्रायंगल इन फैक्ट इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी। देयर इज अ लिबर्टी कैप देयर व्हिच स्टैंड्स फॉर फ्रीडम। और इसमें 5 वॉल्केनोज भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें छोटे छोटे ग्रीन रंग के वॉल्केनोज आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि निकरागुआ में एक्चुअली बहुत सारे वॉल्केनोज हैं और बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं। और उसके साथ आपको नज़र आ रहा है कि 5 ओरिजिनल सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं which Nicaragua was once a part of. So you see that this is the Nicaraguan national flag. Nicaragua is this country over here that you can see just below Honduras as well as El Salvador and just above Costa Rica and Panama, as you can see. It's one of the largest countries, in fact, in Central America. Geographically, as you can see, it is the largest country. Or population-wise, it has about 7 million people today. And it's also one of the most populous countries in Latin America, the third most populous to be exact. Its capital is Managua, which is over here next to these 2 huge lakes. One, it's on the shore of one of the big lakes, और दूसरी lake भी ज़्यादा दूर नहीं है. And in fact, Nicaragua is full of incredibly beautiful lakes and also volcanoes. It's a land of volcanoes and also lakes. और पानी भी बहुत है, और volcano की वजह से आपको पता है और भी ज़्यादा soil में fertility वगैरह आ जाती है. So it's a very fertile area of Central America for that reason. It was also known as the breadbasket of Latin America. It was discovered by the Spanish in 1522 by the explorer Gil Gonzalez Davila. He was the first to explore it, although he tried to conquer it, but then he had to come back, etc. And finally, in between 1523 and 24, Francisco Hernandez de Cordoba conquered Nicaragua, set it up, although he himself was later executed. But nonetheless, he is one of the founders. This is the coast of Nicaragua, जहाँ पे the British also extended their influence between 1633 and 1894. So quite a period where part of Nicaragua was basically controlled by the British, ये coastal areas, because British Caribbean में काफ़ी तगड़े थे, तो उन्होंने coast में अपना थोड़ा सा इलाका भी बना लिया. और इसको Mosquito Coast भी कहा जाता है. The Mosquito people live here in this particular coast of Nicaragua. They are the indigenous people of Nicaragua, the original people of Nicaragua. Many of them moved to this area after the Spanish conquest. So when the Spaniards basically took over most of Nicaragua, तो आपको पता ही है कि क्या हुआ पूरे Latin America में, पूरे American continent में in fact. So many of the indigenous people fled to these areas and to many other areas as well. And these became sort of British areas. Later, when they were annexed by Nicaragua in 1894, तो इनको एक किस्म का autonomous status भी मिल गया कि चलो इसकी कुछ semi autonomous status होगा within Nicaragua. इनकी जो हुकूमतें वगैरह होंगी, ये autonomous areas consider की जाएंगी. The same thing that happened across Latin America, in fact the entire American continent, happened also in Nicaragua with the indigenous people. Sadly कि smallpox, measles, influenza की वजह से indigenous population was completely decimated and destroyed and devastated because they had no immunity to these particular diseases. ये diseases जो है ना, ये old world की diseases हैं. ये हम लोगों को तो चिमड़ती रहती थी, लगती रहती थी. Smallpox तो आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था. तो मगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो लोग थे उनको ये डिजीज़ कभी लगी नहीं थी, तो उनके सिस्टम्स में इम्यूनिटी नहीं थी. तो जब स्पेनिश और पोर्चुगीज़ और दूसरे लोग वहाँ पे गए, तो वो डिजीज़ जब ट्रांसफ़र हुई तो इट वाइप्ड आउट ह्यूज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. और जो बेचारे बच गए, कोई वॉरफेयर में मारे गए, किसी की को मैसेकर कर दिया और बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया, उनके रिजर्वेशंस बना दी, उनको बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड को स्पेनियर्ड्स ने टेक ओवर कर लिया, उनको कोने के अंदर किसी रिजर्वेशन के ऊपर फेंक दिया और उनको इंस्लेव भी कर दिया कि भाई आप आके हमारे सिस्टम के फोर्स लेबर के तहत काम करें, हमारी माइंस में काम करें और जगहों पे एग्रीकल्चर वगैरह में काम करें एंड सो ऑन. So there was a lot of forced labor in agriculture, in mining as well as in domestic labor. और जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी जनरली उसको इस किस्म के लोएस्ट कामों के अंदर शामिल कर दिया गया. ऑल्सो मैनी ऑफ देम वर फोर्सिबली कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. जब ये स्पेनिश कॉन्क्विस्टडोरस वहाँ जाते थे तो मैसेज के अंदर बस दे वुड से कि ओके आई एम कन्वर्टिंग यू टू क्रिश्चियनिटी, आई एम कन्वर्टिंग यू टू क्रिश्चियनिटी एंड सो ऑन. सो और दूसरा मामला ये भी था कि इनकी इंडिजिनस लैंग्वेजेस भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई, ऑल्दो इन निकरागुआ कुछ हद तक सर्वाइव भी की. कुछ एरियाज़ में तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई, बट इन निकरागुआ टू सम एक्सटेंट इन ऑन द कोस्टल रीजन्स, इन द मस्कीटो रीजन्स, सर्टनली दे सर्वाइव टू सम एक्सटेंट.
So Spanish was the colonizers' language, Spanish culture was the colonizers' culture, Christianity was the colonizers' religion for these people. And so, pretty horrible situation for most of them. These are the Mosquito regions where their indigenous languages are still spoken even today in Nicaragua, as you can see. ज़्यादातर coastal areas या river areas के इर्द गिर्द उनकी concentration इन areas में बढ़ गई. बट निकरागुआ की अच्छी बात यह है कि जिस तरह ब्राज़ील में बड़ी बड़ी स्लेव प्लांटेशंस थी, इस किस्म की बड़ी बड़ी स्लेव प्लांटेशंस बहरहाल निकरागुआ में नहीं थी. हालांकि जस्ट अक्रॉस कैरिबियन के अंदर इस किस्म की बड़ी स्लेव प्लांटेशंस मौजूद थी, मगर यहाँ पे नहीं. इनफैक्ट द टोटल नंबर ऑफ स्लेव्स, अफ्रीकन स्लेव्स जो निकरागुआ में आए, दे वर 5 to 10,000, नॉट मोर देन दैट. इतने को बड़े मिलियंस की तादाद के अंदर स्लेव्स यहाँ पर नहीं आए. जिस एरिया में ब्रिटिश ने कॉन्कर किया वो भी कुछ अपने स्लेव्स वगैरह ले आए, क्योंकि ब्रिटिश जो है कैरिबियन के अंदर बहुत बड़े लेवल पे स्लेव प्लांटेशंस किया करते थे. तो मेनली जो एग्रीकल्चर था वहाँ पे, इट डिपेंडेड ऑन कैटल रैंचिंग, स्मॉल स्केल फार्मिंग, ट्रेड एंड स्पेशली माइनिंग एक्सेट्रा. गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता था और गोल्ड और सिल्वर की खूब माइनिंग वगैरह की गई. एंड दे यूज्ड Spanish labor, indigenous labor, mestizo workers, African workers, etc. to do the worst kind of jobs for them. तो जिस तरह लैटिन अमेरिका में बाकी जगह पाया जाता है, यहाँ पे भी वही तकरीबन क्लास स्ट्रक्चर बना, मगर स्लाइटली बेटर, क्योंकि इतनी बड़े लेवल की प्लांटेशन स्लेवरी और अफ्रीकन स्लेवरी नहीं थी निकरागुआ में, जैसे कि हमें ब्राज़ील में पाई जाती है. और गोल्ड एंड सिल्वर की जो माइंस वगैरह थी बहरहाल बाय द 18th century मोर और लेस दे डिक्लाइंड. इसके बारे में एक बड़ी फेमस बात ये भी है कि ये जो सारा एज़टेक गोल्ड सिल्वर वगैरह स्पेनियर्ड्स ने यहाँ से निकाला था और पोर्चुगीज़ ने यहाँ से निकाला था, दे थॉट के बड़े वेल्दी हो चुके हैं एंड सो ऑन, बट फ्रेंकली दे वेस्टेड मोस्ट ऑफ दैट गोल्ड एंड सिल्वर ऑन फ्रिवॉलिटीज़ एक्सेट्रा, एंड इट डिडंट कंट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगल. और फ्रांस और इंग्लैंड उसके मुकाबले में आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने सनत लगाई, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, उन्होंने प्रोडक्टिवली अपनी वेल्थ को इस्तेमाल किया जो कॉलोनियलिज्म से हासिल की थी. 1821 के अंदर निकरागुआ became independent from Spain, but soon after was basically incorporated into the Mexican Empire. और आप देख सकते हैं उस ज़माने में मैक्सिको की बड़ी बेजा थी. ये देखिए पैनामा से लेके वहाँ टेक्सास तक, कैलिफोर्निया वगैरह तक उनका एम्पायर हुआ करता था. फिर आप जानते ही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकनों ने ये सारे का सारा एरिया जो है मैक्सिकन एम्पायर का, इसको टेक ओवर कर लिया. और नीचे से भी जो 5 states, and 1823 they became independent from Mexico and they became the United Provinces of Central America. For a while they were known as the Federal Republic of Central America, but after that basically they became their independent states. This happened in 1831 जब Nicaragua became independent, completely now independent, and by the 1860s British also started to cede control of the coastal territories that they had conquered to the Nicaraguan government. So in this way, between 1838 and 1860, Nicaragua came to be what it is today, an independent country. अब 1840s और 50s के ज़माने के अंदर एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हो रही थी अमेरिका के अंदर, और वो ये थी जिसको कैलिफोर्निया गोल्ड रश कहा जाता है, जिसके अंदर ये बात मकबूल हो गई थी कि अगर हम कैलिफोर्निया जाएं तो वहाँ बहुत सारे गोल्ड माइंस हैं और वहाँ पे ऑयल है और ये है और वेल्थ है और फलाना है ढमकाना है. तो इसको गोल्ड रश कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट मूव करना चाहते थे इन अ बिग वे, और वांटेड टू कॉलोनाइज कैलिफोर्निया एंड ऑल ऑफ दीज एरियाज. सो एक रूट टू कैलिफोर्निया निकरागुआ के थ्रू इस सेंस में जाया करता था कि अगर कोई ईस्टर्न अमेरिका से कैलिफोर्निया जल्दी पहुंचना चाहता था एंड डिडंट वांट टू क्रॉस ओवर फ्रॉम द लैंड, क्योंकि उस ज़माने में सड़कें तो होती नहीं थी, दैट वाज इंडियन टेरिटरी एक्सेट्रा, तो व्हाट दे वुड डू इज़ दे वुड गो साउथ टू निकरागुआ, और निकरागुआ को वो दरिया से क्रॉस करके तो फिर दे वुड गो नॉर्थ टू ओवर द पैसिफिक टू कैलिफोर्निया, और इस तरह से दे वुड ट्राई एंड very quickly try to get a hold of California etc. ये जो सारी मूवमेंट थी, जो सारा गोल्ड रश था, ये बड़ा अजीबो गरीब किस्म का पीरियड है अमेरिकन हिस्ट्री में, क्योंकि ये सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं कर रही थी. This was just unofficially people would get together with groups of soldiers or whatever, mercenaries etc. and just go and conquer an area, colonize an area and say बस अब ये मेरा है. This act was known as filibustering. ठीक है, और ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ है
कि anybody could get up and if they had a sense of adventure, get together 20-30 रैग टैग लोग इकट्ठे किए और पहुंच गए किसी इलाके के अंदर और कहा कि ये इलाका अब से मेरा है. Just take over that land, etc. from the indigenous population, the Indians and so on and so forth. So ये सिलसिला चल रहा था और निकरागुआ क्योंकि यहाँ से एक कॉन्डुइट बना हुआ था, तो जो निकरागुआ के अंदर बजाते खुद जिस तरह पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर 1840s और 50s बल्कि पूरी 19th सेंचुरी के अंदर लिबरल्स और दूसरी तरफ कंजर्वेटिव्स के दरमियान एक लड़ाई चल रही थी. कंजर्वेटिव्स वो थे, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो बिग लैंड ओनिंग क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और लिबरल्स वो थे जो कि न्यू कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स थे या स्मॉल लैंड होल्डिंग क्लास वगैरह उसके अंदर शामिल थी. इनकी जो सिविल वॉर चल रही थी, तो ये जो गोल्ड रश साथ ही चल रही थी और अमेरिकन इसके थ्रू जा रहे थे निकरागुआ के, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हुई और लिबरल्स ने ये कहा, लिबरल पार्टी ने ये कहा विलियम वॉकर को, जो एक इसी किस्म का एडवेंचरर था, कि तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें मर्सनरी आर्मी देते हैं एंड यू हेल्प अस फाइट द कंजर्वेटिव्स. एंड ही सेड ओके आई कैन हेल्प यू डू दैट, क्योंकि मुझे जंग करनी आती है तो आई हेल्प यू डू दैट. वो आया और लो एंड बिहोल्ड एक अमेरिकन ने अपने आप को इंस्टॉल कर लिया एज द president of the country. Imagine that this was an adventurer. He just came कि और इसको किसी ने कहा कि भी हमारी मदद करो against the other guy, and he came and he installed himself with the help of a mercenary army as the president of the country. That same William Walker who installed himself as president in 1856. बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कहानी है कि गुजर रहे थे मुल्क से, सोचा कि चलो प्रेसिडेंट ही बन जाए, ऐसी कहानी लगती है अजीबोगरीब किस्म की. But in a year later, 1857, he was taken down, etc. But just a very interesting thing over here. The struggle, the fight between the liberals and the conservatives continued. Finally, in 1893, General Jose Santos Zelaya basically took power and established a dictatorship which was a liberal dictatorship. The liberals took power and said, bas iqtidar ab hamare paas hai, and that's that. Or he also enacted many progressive reforms like public education, kuch railroads banai, kuch steamship lines banai, kuch constitutional rights वगैरह दिए, minorities को भी rights दिए, voting के भी rights दिए, तो अच्छे reforms किए. मगर conservatives को उसने कहा कि बस हमने बाहर साइड पे रखना है and so on. एक और इस बंदे के बारे में मामला ये था कि कुछ निकरागुअन किस्म का नेशनलिस्ट भी था, तो इसके इख्तलाफात अमेरिकन बिजनेस से भी पैदा हो गए. अमेरिका इस वक्त throughout the 19th century, especially in the late 19th century and early 20th century, was expanding rapidly across Latin America. जैसे दूसरी कंट्रीज़ के बारे में आपको बताया, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, कोई माइनिंग में जा रहा है, कोई एग्रीकल्चर में, कोई पोर्ट्स बना रहा है, कोई रेलवेज़ बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई वो बना रहा है. तो यही कहानी मोरलेस निकरागुआ की भी थी. और जो उसकी लिबरल गवर्नमेंट थी, ज़ेलाया की जो लिबरल गवर्नमेंट थी, उसके और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो तगड़े हो गए और उसने कुछ अपोज़ किया अमेरिकन बिजनेसेस वगैरह इंटरेस्ट को, कुछ नेशनलिस्ट किस्म की स्पिरिट उसमें थी. तो अमेरिकन्स देन allied with the conservatives and sent their troops in 1909 into Nicaragua and overthrew the liberal government over there, re-establishing conservative rule. ये देखें, ये पोस्टर है, actually ये picture है of troops getting on a ship from New York and then traveling to Nicaragua over here basically to take over the country. And they did. They took over the country in 1909. बट ऑफ कोर्स कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि यहाँ से अमेरिकन दफ़ा हों, ग्रिंगो गो होम या यांकी गो होम. उसमें से एक बंदा था ऑगुस्टो सीजार सैंडिनो, जिसने 1927 में अपने लोगों को कुछ ऑर्गेनाइज़ किया देहाती इलाकों के अंदर और 33 तक उसने गुरिल्ला वॉर शुरू कर दी अमेरिका के ख़िलाफ़ कि इनको यहाँ से जो है ना मैंने निकालना है. और बहुत पॉपुलर आदमी था, लोग उसको बड़ा पसंद करते थे. गरीबों में रहता था, गरीबों की खिदमत भी किया करता था, जंगलात के अंदर रहा करता था और वहाँ से अटैक करता था अमेरिकनों को. तो बड़ा हीरो बन गया गरीबों का भी और निकरागुअन्स का एक तरह से नेशनल सिंबल बन गया. ऑल दोज पीपल हु वांटेड कि अमेरिका शुड लीव एंड निकरागुआ शुड बी इंडिपेंडेंट, दे रिगार्डेड सैंडिनो एज अ ग्रेट हीरो. Unfortunately, Sandino was betrayed. He was invited for negotiations कि आओ हमारे साथ बातचीत करो और ये करो वो करो. Negotiations की और negotiations करने के बाद जैसे ही वहाँ से वो निकला तो National Guard, who was led by basically this guy, they captured him and then they basically murdered him. They killed him in 1934. So he became considered a great martyr and so on. He was killed by General Anastasio Somoza Garcia. और मुझे ये नाम बड़ा फ़नी लगता है क्योंकि हमारे नाम समोसा से ये बड़ा मिलता है, इसलिए मैं हमेशा इस बंदे को इसी तरह याद रखता हूँ और इसकी जो डायनेस्टी बनी वो समोसे को देख कर याद रखता हूँ. तो आप भी ऐसे कर सकते हैं.
अब व्हेन समोसा गार्जिया, बेसिकली मैं उसको समोसा कहता हूँ, एक्चुअली समोसा है बट खैर, तो जब समोसा साहब यहाँ पे आ गए तो फिर तो अमेरिका की बल्ले बल्ले और मौज हो गई। उन्होंने भी डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर ली और ऐसी डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश की कि माशाल्लाह 56 तक तो वो खुद इक़्तिदार में रहे, समोसा गार्सिया बेसिकली। और फिर 56 में जब उनको असैसिनेट किया गया तो उनके पुत्र लुई समोसा डिबेल ने इक़्तिदार संभाल लिया। और जब वो भाईजान गए 67 के अंदर तो उनके भाई अनास्तासियो समोसा डिबेल ने जो है इक़्तिदार संभाल लिया। तो इस तरह एक समोसे के बाद दूसरा समोसा आता गया और जाता गया और उनका इक़्तिदार 1934 से लेकर 1979 तक कायम रहा। दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप्स ऑफ लैटिन अमेरिका। इसको मतलब रियली इसको एक टिन पॉट डिक्टेटर का लफ्ज़ नहीं जो हम इस्तेमाल करते कि पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो बिकम अ टिन पॉट डिक्टेटरशिप। वेल, दिस इज़ व्हाट निकरागुआ वाज लाइक एट द टाइम। एंड द समोसा फैमिली वाज वेरी क्लोज टू द अमेरिकन्स। ऑफ कोर्स चोली दामन का साथ था, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे आती गई और समोसा फैमिली भी अमीर होती गई एंड सो ऑन। बनाना हो या कॉफ़ी हो या कॉटन प्लांटेशंस हो, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी निकरागुआ में बैठी हुई थी और अमेरिकन कंपनियां भी थीं। गोल्ड एंड सिल्वर माइंस हो तो लालूज माइनिंग कंपनी अमेरिकन ओन्ड, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। बैंकिंग और फाइनेंस पे भी अमेरिका डोमिनेट करता था। पोर्ट्स, रेलवेज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एज़ यूजुअल अमेरिका डोमिनेट करता था। इनफैक्ट निकरागुआ पे तो अमेरिका ऐसा ज़बरदस्त डोमिनेट करता था कि 1911 में, याद रखें कि 1909 में अमेरिका के ट्रूप्स ऑलरेडी निकरागुआ के अंदर मौजूद हैं। 1911 में व्हेन निकरागुआ डिफॉल्टेड ऑन इट्स ट्रूप्स ऑलरेडी इन ऑक्यूपाइड कंट्री, द यूएस इवन टुक कंट्रोल ऑफ निकरागुआस कस्टम रेवेन्यूज थ्रू अ यूएस अपॉइंटेड फाइनेंशियल एजेंट। यानी कि जो उनकी कस्टम रेवेन्यूज थी उस पर भी यूएस ने अपना एजेंट बिठाया हुआ था कि ये चीज़ें कस्टम्स वगैरह ड्यूटीज़ तुमने कंट्रोल करके रखनी है। और उन्होंने ऑब्वियसली इस तरह से कंट्रोल उनको किया हुआ था कि उसमें से ज़्यादातर फ़ायदा अमेरिका को हो और निकरागुआ को कोई ख़ास फ़ायदा ना हो। सो एनीवे, समोसा फैमिली जो है ना, समोसा बड़ा होता चला गया। बाय द 1970s इस ख़ानदान के बारे में ये कहा जाता था दैट दे कंट्रोल्ड अबाउट 25% of the GDP of the country. Can you imagine? 1/4 of the GDP of the country was under the control of this one family. Land, businesses, industries, cattle ranches, sugar mills, textile factories. मौज थी उस ज़माने में निकरागुआ में समोसा फैमिली की। ज़ाहिर बात है इसके ख़िलाफ़ बगावत किसी ना किसी पॉइंट पे होनी थी। 1961 के अंदर एक ग्रुप ऑर्गेनाइज हुआ कॉल्ड द सैंदनिस्ता नेशनल लिबरेशन फ्रंट, FSLN उनकी अपनी ज़बान के अंदर। और दे वर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय फिडेल कैस्ट्रो, जो आप जानते हैं 59 में उसने क्यूबा के अंदर चे गवारा इनकलाब करने में कामयाब हो गए एंड सो ऑन। उन्होंने कहा भाई हम भी इनकलाब करें। तो 1961 में उन्होंने भी कोशिश की कि हम करें और उन्होंने अपना नाम रखा किस पे, ऑगस्टिनो सेजार सैंडिनो के नाम पे। सो दे आर नोन एज द सैंदनिस्तास। और जो रेवोल्यूशन उन्होंने किया उसको हम कहते हैं सैंदनिस्ता रेवोल्यूशन, ठीक है। तो दैट्स देयर पॉपुलर नेम। दे टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम सैंडिनो। और इनके ख्यालात नंबर एक तो ऑब्वियसली निकरागुअन नेशनलिस्ट थे, सैंडिनो से इंस्पायर्ड थे। सैंडिनो अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ता था तो उस सेंस में वो एंटी इंपीरियलिस्ट भी थे कि अमेरिका को हमने यहाँ से निकालना है, यंकी गो होम, ग्रिंगो गो होम। और क्यूबन रेवोल्यूशन की वजह से मार्क्सिस्ट भी वो हो गए कि भाई क्यूबा के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीली आ रही हैं, उसको वो देख रहे थे और कह रहे थे यार ये ठीक तरीका है। देखो वहाँ पे एक मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने कामयाबी से बे ऑफ पिग्स इन्वेजन को भी रिवर्स किया है, उन्होंने जो अमेरिका का होल्ड था क्यूबा पे, स्ट्रैंगल होल्ड था, उसको ख़त्म किया है वगैरह वगैरह। सो दे टुक दैट एज अ मॉडल, very much so. And one other very interesting influence in Nicaragua was liberation theology. अगरचे liberation theology निकरागुआ से शुरू नहीं हुई, शुरू पेरू, ब्राज़ील, एल साल्वाडोर वगैरह से हुई, मगर इसका एक कलीदी किरदार निकरागुआ और निकरागुअन रेवोल्यूशन में इसलिए रहा क्योंकि मोर और लेस FSLN ने लिबरेशन थियोलॉजी को ओन किया और कहा कि यस ये भी हमारी ओवरऑल इनकलाब का और हमारी सोच का हिस्सा है। और इनफैक्ट जो लिबरेशन थियोलॉजी के मेजर बिशप्स वगैरह थे और लीडर्स और फादर्स और प्रीस्ट वगैरह थे, उनकी ऑफिशियल पोजीशंस थी गवर्नमेंट के अंदर एंड सो ऑन। ये नहीं कि चर्च एंड स्टेट अलहदा तो था ही, जो भी उसको जिस तरह से देखना है, मगर दे वर वेरी मच पार्ट ऑफ दैट रेवोल्यूशनरी प्रोसेस इन अ सर्टन सेंस। यू कैन से कि जो FSLN ने बाद में रियासत बनाई, उन्होंने उसको काफ़ी प्रमोट किया लिबरेशन थियोलॉजी को।
जिसकी वजह से निकारागुआ इज in our popular imagination is very much associated with the ideas of liberation theology. So liberation theology वाले क्या कहते थे? Liberation theology वाले ये कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेसिकली एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर थे, एक लिबरेटर थे, गरीबों की खिदमत उन्होंने की, गरीबों का इनकलाब उन्होंने किया, और क्रिश्चियनिटी वाज बेसिकली अ स्ट्रगल ऑफ द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन, द स्लेव्स, द डाउनकास्ट, द आउटकास्ट, द मार्जिनलाइज्ड पीपल in the Roman Empire. ये तो गरीबों का इनकलाब था, and so on. So Christianity today must also fight for land reforms, it must fight for labor rights. गरीबों के लिए हमें जद्दोजहद करनी है. असल में Christianity का मैसेज तो यही है कि गरीबों के लिए स्ट्रगल करो. For example, they would say things like to know God is to work for justice. या वो कहते थे Jesus did not teach a doctrine, he lived a way of life that led to justice and love. Puis Oscar Romero, very famous, he said, they call me a communist, but I am simply a bishop who speaks for the poor. God's love is found in the faces of the poor and the suffering. Even Pope Francis, जो अब Pope हैं, he is also very much influenced, in fact, by liberation theology. ये इसलिए भी बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि देखो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कैथोलिक चर्च थी वो यूरोप की सबसे बड़ी फ्यूडल क्लास बन चुकी थी, और जनरली वो फ्यूडलिज्म को प्रोटेक्ट और डिफेंड करती थी. और क्योंकि कैथोलिसिज्म जनरली उसकी में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी, अगरचे मैं भी बिल्कुल इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि दैट वाज द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, नॉट एट ऑल, मगर ये तारीख़ का आप कह लें, जबर कह लें या अलमिया कह लें, आयरनी ऑफ हिस्ट्री कह लें कि द कैथोलिक चर्च हैड बिकम द बिगेस्ट फ्यूडल लॉर्ड बेसिकली इन यूरोप. और कैथोलिसिज्म वाज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स इन पोर्चुगल एंड स्पेन. और जब ये सारी क्रिश्चियनिटी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में आई तो इसने ना सिर्फ स्लेवरी को जस्टिफाई किया, जो अफ्रीकन स्लेवरी थी, चर्च उसके साथ भी खड़ी रही, और जो इंडिजिनस पॉपुलेशन के साथ हुई और फोर्स कन्वर्जन्स हुई, अनफॉर्चुनेटली चर्च उसके साथ भी खड़ी रही. और चर्च का रवैया ख़वातीन के एतबार से भी बहुत ही पेट्रियार्कल था, बहुत पेट्रियार्कल था. तो ये सब मामलात पे लिबरेशन थियोलॉजी वाले वो लोग थे जिन्होंने दोबारा से नज़रसानी की और कहा कि नहीं, दिस वाज नॉट द ओरिजिनल मैसेज ऑफ क्रिश्चियनिटी कि हम फ्यूडल लॉर्ड्स के की बी टीम बन जाएं या खुद फ्यूडल लॉर्ड्स बन जाएं. जो चर्च में हुआ ये जो जिस तरह से तारीख बढ़ी, दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल मैसेज of Hazrat Isa alayhi salam, or we have to go back to the original message. So Gustavo Gutierrez is considered the founder of liberation theology. ये उसकी किताब है A Theology of Liberation. He was from Peru, and he first wrote about this कि original message of Christianity has been distorted over time. काश कोई इस्लाम के वाले से भी कोई ऐसी किताब लिख दे कि original message of Islam has been distorted over time by all the dynasties that came later, etc. मगर ऐसा फ़िलहाल बड़े लेवल का काम कम से कम हमें मुसलमानों में नज़र नहीं आता, मगर लैटिन अमेरिका में दिस इज़ फैसिनेटिंग. देन यू हैड लियोनार्डो बॉफ, ही रोट थॉट्स एंड ड्रीम्स ऑफ एन ओल्ड थियोलॉजियन एक्सेट्रा. इसके बाद बॉफ वॉज फ्राम ब्राज़ील, एंड यू हैव ऑस्कर रोमेरो, वन ऑफ माई चाइल्डहुड हीरोज़ फ्राम एल साल्वाडोर. इस पर एक बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है कॉल्ड रोमेरो. है तो 80s की फिल्म, बट आपको शायद यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाए. तो उस ज़माने में हम VHS टेप्स जाके रेंट करते थे, 10 रुपए की एक टेप आती थी, उस पर मैंने रोमेरो की फ़िल्म देखी. अमेजिंग फिल्म, अमेजिंग फिल्म. बेसिकली ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड बिशप, वेरी काइंड हार्टेड मैन. और मगर उसकी सारी ज़िंदगी जो है ना चर्च के अपने मोनेस्ट्री वगैरह के अंदर गुजरती है. आपको पता है चर्च का जो अपना एक पूरा सिस्टम है उसमें एक जिस तरह मदरसा का निज़ाम होता है, उसमें आप सारी ज़िंदगी जो है वो उसकी चार दीवारी के अंदर ही गुजार देते हैं. आपको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. एग्रीकल्चर भी उसके अंदर कर रहे हैं, ज़िंदगी भी आपकी उसके अंदर गुजर रही है, सर्विस भी आप उसके अंदर कर रहे हैं, एंड सो ऑन. ही इज़ वेरी काइंड मैन, always took care of the needy and sick and so on and so forth, but didn't really know much about El Salvador के चर्च के बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. तो एक दफ़ा उसको जो है ना मार्क्सिस्ट गुरिल्लास जो है ना किडनैप कर लेते हैं. किडनैप करके उसको जो है फिर एक स्लम के अंदर जो है ना छोड़ देते हैं कि देखो कि मुल्क के हालात क्या हैं, जस्ट रोम अराउंड एंड सी फॉर योरसेल्फ. और वो जाता है और वो घूमता है और फिरता है और देखता है लोग तो टेरेबल कंडीशंस में रह रहे हैं, एंड इट ट्रांसफॉर्म्स हिम, completely transforms him, and he becomes one of the champions of liberation theology. And unfortunately, and he becomes a revolutionary, not a Marxist because he's not a materialist. He's very much a Christian in that, in that sense कि भाई I am he's a bishop after all. Bishop कोई ordinary बंदा तो नहीं होता Christianity में, बड़ा senior बंदा होता है.
तो बट सेज के लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, बट सेज के भाई लेबर राइट्स की बात होनी चाहिए, बट सेज कैपिटलिज्म फ्यूडलिज्म खत्म होना चाहिए, एंड सो ऑन. So he is then assassinated by the death squads in El Salvador, which is a great tragedy in my view. We also have, this very famous saying, when I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist. He was the Catholic archbishop, etc. And again, this is very much part of liberation theology. This saying is like a motto of liberation theology. बड़ी famous quotation है ये. अच्छा जी, बैक टू निकरागुआ. अब 1972 के अंदर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ मनागुआ के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर. डेविस्टेटिंग अर्थक्वेक, 5 to 10,000 people were dead, tens of thousands of people homeless, घर सारे टूट गए एंड सो ऑन. तो दुनिया के लोगों ने और अमेरिका ने भी और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इमदाद भेजी. $250 million, उस ज़माने की $250 million इमदाद के अंदर आई. उस ज़माने की $250 million बहुत बड़ी रकम होती थी. और हैरान कौन बात ये थी कि 30 to 50% जो एड आई गरीबों के लिए, वो समोसों के अंदर जो है कबाब बन के रह गई, या समोसों के अंदर आलू बन के रह गई. यानी कि समोसा फैमिली ने उसको टेक ओवर कर लिया. इट वॉज होरिफिक. और पीपल आउटरेज्ड कि यार ये हमारे लिए एड आई और सब ये कमबख्त खा गए. इनफैक्ट दे इवन यूज द अर्थक्वेक कि जिन इलाकों के अंदर लोग बेचारे गरीब हो गए और उन्होंने अपने घर बेचने की मजबूरी हुई, उन्होंने ज़मीनें भी ख़रीद लीं और अपनी मोनोपोली और ज़्यादा बढ़ा ली ओवर निकरागुआ. सो पब्लिक तो अब बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गई और मॉडरेट्स भी जो थे और रेडिकल्स दोनों ही ख़िलाफ़ हो गए और ने कहा कि यार इस डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने की ज़रूरत है. एंड दिस लेड टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द सैंडिनिस्टा फोर्सेस in the countryside, but also of moderates within the cities, etc. One great moderate leader was Pedro Joaquin Chamorro, who basically was a newspaper editor, etc. He took out a newspaper. He was the leader of the Democratic Liberation Union. 1978 में suddenly this guy gets assassinated. उसको कत्ल कर दिया जाता है. It comes as a shock to everybody कि यार ये तो इंतहाई मॉडरेट किस्म का आदमी था, प्यार मोहब्बत से बात करता था, कोई गुरिल्ला वॉर तो नहीं कर रहा था, कोई इसने हथियार नहीं उठाए हुए थे, कोई कानून नहीं तोड़ रहा था, बस बेसिकली अपनी कलम की ताकत से लिख रहा था. तो इस तरह से इसको असैसिनेट कर देना ये बहुत बड़ा जुल्म है. तो उसके खिलाफ एक मतलब है कि समोसा फैमिली के खिलाफ एक जनरल स्ट्राइक शुरू हो गई और लोग सड़कों पे बाहर आ गए और बड़ा फसाद हो गया. FSLN कंट्री साइड से एंड मॉडरेट्स और रेडिकल्स, FSLN रेडिकल्स हैं, मार्क्सिस्ट हैं, सोन और भी ग्रुप्स थे. मार्क्सिस्ट सबसे बड़ा FSLN ग्रुप था और FSLN के अंदर भी मुख्तलिफ ट्रेंड्स वगैरह, एक लिबरेशन थियोलॉजी, एक ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, एक क्यूबन किस्म के मॉडल पे चलने वाले लोग थे. और जो मॉडरेट्स थे ये सारे इकट्ठे हो गए और ने कहा भाई बाकी चीज़ें बाद की बात हैं, मगर ये we don't want to eat any more samosas, ठीक है ना. So this led now in 79 to the Sandinista revolution. The Sandinista guerrillas now came and to power. They came to the city center and now they are greeted by like thousands of people. Public ऐसी बाहर आती है जैसे crazy level पे, and the Samosa family basically runs away. Here are some beautiful pictures of the Sandinista revolution. You can see an ocean of people comes out to greet the guerrillas. Very much like the Cuban revolution, जैसे चे गवारा और फिडेल कैस्ट्रो हवाना के अंदर आए तो यहाँ पे ये मनागुआ के अंदर आए तो पब्लिक बाहर आ गई. ये हमारे हीरोज़ हैं, 61 से लड़ रहे हैं इस घटिया डिक्टेटरशिप के खिलाफ. शुक्र है कम वक्त दफ़ा हुआ है, हमें आज़ादी मिली है, एंड सो ऑन. अ मोमेंट ऑफ ग्रेट आइडियलिज्म इन फैक्ट. और पूरी दुनिया के अंदर 79 में ये रेवोल्यूशन है तो पूरी दुनिया के अंदर इसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ. इट रियली रिवर्बरेटेड वेरी स्ट्रांगली बिकॉज देखो क्यूबन रेवोल्यूशन तो 59 में हुआ था, आपको पता है. फिर उसके बाद कई अटैम्प्ट्स हुई. ग्वाटेमाला वाज बिफोर, बट कई और अटैम्प्ट्स, एल साल्वाडोर के अंदर अटैम्प्ट, चिली के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, वो ओवरथ्रो हो गई वगैरह वगैरह. तो अब ये एक और रेवोल्यूशन कामयाब हुआ एंड इट लुक लाइक दिस वाज सॉलिड. दिस वाज एक्चुअली had won the guerrilla war, it had won the struggle decisively, and that this was going to be a solid revolution. This was a really new promise. और बहुत सारे आइडियलिस्टिक लोग अमेरिका से भी उठ के निकरागुआ चले गए, कोई जर्मनी से उठ के निकरागुआ, कोई फ्रांस से, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई स्पेन से, कोई इधर से उधर से निकरागुआ चले गए कि वी आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू सोसाइटी. ग्रेट सॉर्ट ऑफ स्पिरिट कि देखो जी अब एक नई किस्म की सोसाइटी होगी और हम वो मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे
जो सोवियत यूनियन में हुई या इधर हुई या दूसरे सोशलिज्म में हुई, हम कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, हम डिसेंट्रलाइज रखेंगे, हम चीज़ों को बड़ी डिफरेंट तरह से चलाएंगे. Women also, as you can see, play a very central role in this revolution, etc. They are very much front and center of this revolution. This is a very famous poster of the Nicaraguan revolution where you can see this woman is simultaneously breastfeeding a child, but she is also holding a gun on her back, etc. ये बड़ा famous poster उस period का बना. अब जो ना निकरागुअन रेवोल्यूशन जब हो गया, सैंदिनिस्तान रेवोल्यूशन जब हो गया, तो मॉडरेट्स और रेडिकल्स दोनों ने मिल के एक हुकूमत बनाई. और सबसे पहले उन्होंने काम ये किया कि जो बैंक्स थे, जो माइंस थी, जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ थी, उनको नेशनलाइज कर दी. इनमें से अक्सर जो थी वो वैसी समोसा फैमिली या अमेरिकनों की ओन थी. इन्होंने इनको नेशनलाइज कर दिया. और जितनी समोसा ओन बिजनेसेस थी उनको तो फ़ौरन ही नेशनलाइज कर दिया. दैट वाज अबाउट 25% ऑफ द इकोनॉमी तो वहीं पे ही स्टेट के कंट्रोल में आ गई. टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर नाउ प्लेस्ड अंडर स्टेट कंट्रोल. अगेन एज आई सेड बिफोर, ये वो सेक्टर्स थे जो बेसिकली जहाँ अमेरिका डोमिनेट करता था. सो दे कंसिडर्ड देम एज पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, but they also considered them as part of a nationalist or anti-imperialist revolution कि इसके बगैर हम अपने मुल्क को आज़ाद नहीं कर सकते. because as long as America controls our telecommunications, energy sector उनके कंट्रोल में, ट्रांसपोर्ट उनके कंट्रोल में, बैंक्स और फाइनेंस उनके कंट्रोल में, तो बेसिकली कंट्री उनके कंट्रोल में. तो ये चीज़ें जब हमारे कंट्रोल में आएंगी तो फिर मुल्क हमारे कंट्रोल में आएगा. और इसके साथ ऑब्वियसली उन्होंने लैंड रिफॉर्म भी किया. जो समोसा फैमिली की लैंड्स थी उनको उन्होंने बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स बना दिए उनके. एंड बाय द मिड 1980s नाउ, in the first 5 years of the revolution, 50% of Nicaragua's arable land had been redistributed. वो कहीं पे भी बड़ी बड़ी जो प्लांटेशंस वगैरह थी अमेरिकन ओन्ड या समोसा फैमिली या उसके करीब जो उसके क्रोनीज वगैरह की फैमिलीज थी, सब की सब जो उन्होंने गरीबों के अंदर तकसीम कर दी, बांट दी. कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज बन गई, कुछ बड़े बड़े कलेक्टिव फार्म्स बन गए. गवर्नमेंट ऑल्सो नाउ बिगैन टू रेगुलेट प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स, फ्यूल, मेडिसिन एक्सेट्रा टू कीप देम अफोर्डेबल, टू कीप देम चीप. कि भाई जिस तरह कि भाई रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम, इस किस्म की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो सबको मिलनी चाहिए. और सब्सिडीज़ वो गिवन टू फार्मर्स, कोऑपरेटिव्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एक्सेट्रा. गवर्नमेंट वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स कि कोऑपरेटिव्स बनाएंगे और उससे जो है ना एक नया किस्म का सोशलिज्म भी आगे आएगा. बट जनरली दे हैड अ मिक्स्ड इकोनॉमी. दे डिडंट गो फॉर फुल आउट सोशलिज्म, दे वेंट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी के स्टेट विल कंट्रोल द की सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मगर स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो प्राइवेट रहेंगी. प्राइवेट और बाकी प्राइवेट एंटरप्राइजेस को हम नहीं छेड़ेंगे. जिनका ताल्लुक अमेरिका से नहीं है या समोसा फैमिली से नहीं है उनको नहीं हम छेड़ेंगे, मगर जिनका इन दो चीज़ों से ताल्लुक है उनको हम नेशनलाइज कर देंगे बिकॉज दिस वॉज बैड न्यूज़ फॉर अस एक्सेट्रा. एंड दे ऑल्सो इनकरेज कि जॉइंट वेंचर्स बनाओ. इवन फॉरेन कैपिटल आए हमारे साथ, जॉइंट वेंचर्स बनाए एक्सेट्रा. मगर ऑफकोर्स अमेरिका तो इसके लिए तैयार नहीं था कि कोई हम जॉइंट वेंचर्स हम इन सोशलिस्ट गवर्नमेंट के साथ बनाएं. अमेरिका का तो बिल्कुल और मूड था, और अमेरिका का तो मूड ये था कि इस गवर्नमेंट को हमने गिराना ही गिराना है, जो मर्जी हो जाए. एट द सेम टाइम हेल्थ केयर और लिटरेसी पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स किए. 79 में जब इनकलाब हुआ तो आधी पॉपुलेशन जो है वो अनपढ़ थी बिल्कुल ही. इन्होंने फिर स्टूडेंट्स को कहा कि और टीचर्स और प्रोफेसर्स से कहा कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए कि हम कंट्री साइड में जाएंगे, देहातों में जाएंगे, वहाँ जाके हमने लोगों को पढ़ाना है, वहाँ जाके हमने स्कूल भी लगाने और हमने बेसिक लिटरेसी प्रोग्राम्स करने. वुड यू बिलीव कि 1 लाख लोगों ने वॉलंटियर किया. छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क नहीं है. 1 लाख लोग उस मुल्क में वॉलंटियर करें बहुत बड़ी बात है. 1 लाख लोगों ने वॉलंटियर किया कि हम जाएंगे पिंडों के अंदर. 2-2 साल का मिनिमम होता था कि 2 साल हम पिंड में लगाएंगे और हम वहाँ पे किसानों को, गरीबों को पढ़ाएंगे. और उन्होंने ये करना शुरू किया. एंड इट वाज सो इफेक्टिव कि 50% उनकी लिटरेसी रेट थी. 50% से वो 12.9% में ले आए बाय 1980. अनबिलीवेबल एडवांसमेंट. इतनी रैपिड एडवांसमेंट तारीख में कहीं नहीं देखी गई, ना सोवियत यूनियन में, ना चाइना में, ना वियतनाम में, कहीं पे भी नहीं देखी गई. It was a 37.4% reduction in literacy and is considered one of the most successful literacy campaigns in history, all of history. In fact, UNESCO ने उसको खास एक award भी दिया 1980 में called the Nadezhda Krupskaya Literacy Prize. By the way, अगर आपको नहीं पता कि Nadezhda Krupskaya कौन है, तो Nadezhda Krupskaya was the wife of the Russian revolutionary leader Vladimir Lenin. लेनिन की बीवी का नाम था. और लेनिन की बीवी जो थी वो सोवियत यूनियन के अंदर वॉज बेसिकली इन चार्ज ऑफ
मेकिंग श्योर कि एजुकेशन जो है वो बढ़े एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसके नाम पे ये यूनेस्को का अवार्ड था, तो वो उन्होंने इनको दिया। और हेल्थ केयर में भी उन्होंने डॉक्टर्स को मोबिलाइज किया, नर्सेज को, हेल्थ वॉलंटियर्स को, कि रूरल एरियाज़ में हम जाएंगे। जैसे चाइना में आपने एक पता नहीं सुना है इसका कि नहीं, बट चाइना हैड दिस स्कीम कॉल्ड बेयरफुट डॉक्टर स्कीम। बेयरफुट डॉक्टर क्या होता था कि नंगे पैर डॉक्टर है, वो पिंडों में जा रहा है और वो लोगों को की हेल्प कर रहा है। तो दीज पीपल वर ऑब्वियसली नॉट बेयरफुट, बट द पॉइंट इज स्टिल द सेम कि वॉलंटरली लोग पिंडों के अंदर गए, उन्होंने 1000 नई हेल्थ केयर यूनिट्स और क्लिनिक्स वगैरह बनाई। क्यूबा ने बड़ी इस पर मदद की, क्योंकि क्यूबा का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी बड़ा है और क्यूबन डॉक्टर्स एंड सो ऑन बड़े एडवांस्ड हैं अपने मुल्क के एतबार से। और वैसे भी क्यूबा ने इस पर बड़ी मेहनत की हुई है अक्रॉस द थर्ड वर्ल्ड कि हमने अपने डॉक्टर्स के ज़रिए जो है वो अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। तो क्यूबा ने बहुत मदद की, और प्रिवेंटिव मेडिसिन पे ज़्यादा उनका एम्फेसिस था ऑब्वियसली, कि क्लीन वाटर हो, न्यूट्रिशन अच्छी हो, सैनिटेशन अच्छी हो, हाइजीन अच्छी हो, तो 70% बीमारी तो इसी से ख़त्म हो जाती है ना। बाकी फिर अगर आपको बीमारी चिमट जाए, आपको अस्पताल जाना चाहिए, वो चीज़ है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने हेल्थ क्राइसिस को ठीक करना है और आपने इमीडिएटली अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ बेहतर करनी है, तो हाइजीन, सुएज, इस तरह की चीज़ें ठीक कर दें, तो गार्बेज को ठीक कर दें, तो एकदम से जो है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। फिर यूनेस्को के तहत उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी किया। इट लेड टू अ 50% रिडक्शन इन चाइल्डहुड डिजीजेज, मीजल्स, पोलियो, टेटनस वगैरह, ये सब चीज़ें कम हो गई। और मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम्स की वजह से प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ्स कम हो गई। They reduced infant mortality from 121 deaths per 1000 births to only 63 deaths per 1000 births। आधी कर दी उन्होंने infant mortality वगैरह भी। So it was very strong progress in health and education। मगर अमेरिका ने ज़ाहिरी बात है इससे खुश तो नहीं होना था। जैसे चिली की गवर्नमेंट, क्यूबा की गवर्नमेंट, ग्वाटेमाला की गवर्नमेंट, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को उन्होंने पहले गिराया। उन्होंने कहा तुहानू जरा वेखने कि मैं तुसी बचदे हो साडे तो उन्होंने एक फोर्स ऑर्गेनाइज की कॉल्ड द कॉन्ट्रास, ठीक है। होंडुरास के अंदर इनको ऑर्गेनाइज किया और CIA ने उसी तरह से, और कहा कि निकरागुआ के अंदर इन्वेड कर दो और इनको अपने पैरों पे खड़े नहीं होने देना। ये कोई क्लिनिक लगाते हैं उसको बम से उड़ा दो, ये कोई स्कूल बनाते हैं उसको फड़का दो, कोई कोऑपरेटिव बनाते हैं वहाँ पे केओस पैदा कर दो, जो भी है केओस पैदा करो मुल्क के अंदर, ये पैरों पे नहीं खड़े हो सकते। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि हम इसका एम्बार्गो कर देंगे, हम ट्रेड भी नहीं अलाउ करेंगे, हम इनसे पैसे भी खींच लेंगे, हम हर इकोनॉमिक तरीका भी इस्तेमाल करेंगे इनको जो है ना थल्ले लगाने के लिए। एट द पीक द कॉन्ट्रास हैड 20 to 25,000 फाइटर्स। एवरेज उनके को 10-15 हज़ार फाइटर्स तो होते ही थे, और इसके साथ मज़ीद 5 से 7 हज़ार इनके इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स के लोग भी थे। तो बड़ी बिग ऑपरेशन, 30-35 हज़ार लोग एट द पीक इसमें काम कर रहे थे कि भाई हमने किसी तरह की गवर्नमेंट गिरानी। ऑब्वियसली ऑल ऑफ इट वाज बैक्ड बाय द CIA एंड अमेरिकन मनी। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट थे, क्योंकि इनका काम ही ये था कि इन्होंने केओस पैदा करना है, तो दे वो क्वाइट ब्रूटल, दे वो रियली क्वाइट ब्रूटल। और इन्होंने कई मैसेकर्स किए, द मैसेकर ऑफ सैन फ्रांसिस्को डेल नोत्रे, द बेके मैसेकर, द एल जिकारो मैसेकर, द ला पैट्रियोटा मैसेकर, द मैसेकर ऑफ ला ट्रिनिदाद, द एल काओ मैसेकर एक्सेट्रा। मगर US ने फिर भी इनको यही कहा कि नहीं नहीं, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। इनफैक्ट बाद में NGOs और ह्यूमन राइट्स के लोगों ने इसको बहुत थॉरली डॉक्यूमेंट किया और ये कहा कि इन्होंने टेररिज्म भी किया है, इन्होंने वॉर क्राइम्स भी किए हैं और बहुत जुल्म व ज़्यादती की। बट अमेरिका केप्ट गिविंग देम मनी, they gave them over $300 million to continue fighting, etc. By 1983, the war had become so bad that the Sandinistas, the government, had to start conscription. Conscription meant that every young man who was of fighting age had to join to fight the Contras, etc. This was obviously not popular at all, but it was also necessary, I guess, at some level. Contras were also trying कि the mosquito public को हम अपने साथ जोड़ लें, वो जो coastal areas में रहते थे और जो basically Spanish speaking लोग नहीं थे। And at first Sandinistas की पॉलिसी से बड़ी मिस्टेक्स भी हुई। उन्होंने जब उनको ये शक पड़ा कि ये कॉन्ट्रास की सपोर्ट कर रहे हैं या ये हमारे साथ नहीं है, उन्होंने उनको रिप्रेस भी किया, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लोग भी मारे गए उसके अंदर। And the Sandinistas generally ignored the calls for autonomy, land rights and cultural identity of the Mosquito people. In fact, जब इन्होंने लिटरेसी कैंपेन किया तो ये तो स्पेनिश स्पीकिंग लोग थे, तो इनकी कोशिश ये थी कि जो इंडिजिनस इंडियन लोग हैं उनको वो स्पेनिश सिखा दें। तो जो इंडिजिनस लोग थे उन्होंने कहा ये तो हम कॉलोनाइजर की ज़बान है, हमने ये ज़बान नहीं सीखनी, हमने लिटरेसी इस ज़बान में लेनी ही नहीं है। So there was a big gap between them in the beginning,
especially in the early 1980s. But बाद में by the late 1980s, Sandinistas realized their mistake and they created a new law in 87 called the Autonomy Law, in which they said to the mosquitoes कि ठीक है जी, आपकी अपनी पूरी autonomy होगी, हम आपके एरिया में इंटरवीन नहीं करेंगे, आप जैसे भी रहना चाहते हैं रहें. तो ये जो इंडिजिनस लोग थे ना, ये कॉन्ट्रास, पहले तो ये कॉन्ट्रास के साथ गए, मगर बाद में फिर ये कॉन्ट्रास के भी खिलाफ हो गए, क्योंकि कॉन्ट्रास भी बेसिकली स्पेनियर्ड्स ही थे ना. तो उनका तो मामला और था, उनका तो मामला ये था कि हम दोनों से ज़रा दूर रहना चाहते हैं, तो एंड सो ऑन. और ये किताब बड़ी खूबसूरत किताब है बाय रॉक्सेन डनबार ऑर्टेज, विच कैप्चर्स दिस इंटायर हिस्ट्री वेरी ब्यूटिफुली. इट्स अ वेरी फेमिनिस्ट बुक, क्योंकि जिस तरह से इस खातून ने ये तारीख लिखी है, यू नो, फेमिनिस्ट स्लोगन उस पीरियड का ये था, द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल. तो वो अपनी कहानी भी बता रही है और साथ ही साथ वो मस्कीटोज़ की कहानी और सैंडिनिस्ता रेवोल्यूशन की कहानी भी आपको बता रही. फिर मैं यहाँ गई, फिर ये बात हुई, फिर मैं वहाँ गई, फिर वो बात हुई. देन आई वाज सफरिंग फ्रॉम अल्कोहल एडिक्शन विच ही वाज सफरिंग फ्रॉम. वो भी वो साफ सारी बात सामने कर देती है कि हाँ, फिर मैं ज़रा यू नो ज़्यादा ही इस तरफ ओवर हो गई, फिर मैंने बड़ी कोशिश की इसको मैं छोड़ूँ वगैरह, जो भी है. फिर मेरी डिवोर्स हुई, फिर मेरी एक और शादी हुई, जो भी सारी हिस्ट्री है. फिर मेरी फलाने से लड़ाई हुई, मैं इस कॉन्फ्रेंस पे गई, वो बड़ा ही उल्लू का पट्टा था. जो भी और वो बड़ा अच्छा था. बोथ थिंग्स ऑब्वियसली जिस तरह ज़िंदगी में होता है. तो सारी उसने तारीख वो बयान की. इट्स अ फैसिनेटिंग बुक टू रीड फॉर दैट रीज़न, बिकॉज इट्स अ हिस्ट्री रिटन इन अ वेरी डिफरेंट वे, फ्रॉम वेरी पर्सनल, फ्रॉम हर आईज यू सी द whole, you know, conflict between the whole Sandinista revolution, as well as the conflict between the indigenous people and the Sandinistas. You see that from her eyes. It's a gorgeous book. So by 1985, now Daniel Ortega basically became the president. He won 67% of the vote. यानी FSLN जो है वो dominate कर दी. और इसकी वजह से जो moderates FSLN के साथ आए थे वो खुश नहीं थे अब. और उनमें से कई लोग ऐसे बन गए जिन्होंने FSLN के खिलाफ अब यू नो ऑपोजिशन ले ली, और कोई तो ऐसे भी थे जो कॉन्ट्रास्ट के साथ जाके जुड़ गए. सो बेसिकली नाउ FSLN इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इटसेल्फ इन चार्ज, और दे आर नॉट रियली एबल टू कीप द मॉडरेट्स विद देम एक्सेट्रा. और एट द सेम टाइम US ने एक इकोनॉमिक एम्बार्गो और भी ज़्यादा सख्त कर लिया. पहले लगा हुआ था, और भी ज़्यादा सख्त कर लिया. इनफैक्ट हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग कि निकरागुआ की जो पोर्ट है, उस पोर्ट को उन्होंने माइंस लगा दी कि कोई किश्ती अगर यहाँ आएगी तो माइन में जाकर ठा करके फट जाएगी और किश्ती तबाह हो जाएगी और लोग डूब जाएंगे, इसलिए निकरागुआ के पोर्ट में ना आना. इमेजिन दैट. किसी और कंट्री के ऐसी बात है जैसे कोई और कंट्री आके आपके कराची के इर्द गिर्द समुंदर के अंदर माइंस लगा दे कि कोई कराची किश्ती अपनी ना ला सके. उन्होंने माइंस लगा दी. दिस होल सिनारियो then went to the World Court in 1986, और वर्ल्ड कोर्ट ने कहा कि दिस इज़ अ क्राइम, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट निकरागुआ, और आप पे करें पैसे. अमेरिका ने कहा भाड़ में जाए वर्ल्ड कोर्ट, हम वर्ल्ड कोर्ट को ही नहीं मानते. ना तो पैसे पे किए उन्होंने, वर्ल्ड कोर्ट से ही विड्रॉ कर लिया. उन्होंने कहा चलो तुसी कर दे रहो जो करना, असी नहीं तुहाडे नाल खेडदे. और एनीवे अमेरिका ने ऑब्वियसली फिर और भी सारे, जिस तरह वो कहता है ना, निक्सन ने कहा था मेक द इकोनॉमी स्क्रीम, तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की टू मेक द इकोनॉमी स्क्रीम, एंड दे वर इफेक्टिव. हाइपर इन्फ्लेशन हो गई in Nicaragua. It went all the way up to 13,000% per annum. 13,000%. Can you imagine कि इन्फ्लेशन हो गई, यानी करेंसी तो तबाह हो गई बिल्कुल एक दफ़ा ना. Americans were very successful and they continued funding the Contras. अब दिलचस्प बात ये थी कि ये वो पीरियड है कि जब ईरान इराक जंग भी हो रही थी, और शुरू में अमेरिका ने इराक को कहा कि जाके सदाम जाओ जाके ईरान पे अटैक कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं. और इराक ने अटैक किया, मगर पब्लिक को ये नहीं पता था और लोगों को भी ये नहीं पता था कि अमेरिका चिलाकी से ईरान की भी मदद कर रहा था कि तुम इराक पे अटैक करो, हम तुम्हारी मदद करते हैं. इनफैक्ट उन्होंने ईरान को आर्म्स भी बेचने शुरू कर दिए, हालांकि उस वक़्त ईरान पे एम्बार्गो था कि भाई आप आर्म्स नहीं बेच सकते. वायलेटिंग दैट एम्बार्गो, रोनाल्ड रेगन ने सीक्रेटली बड़े तरीके से ईरान को आर्म्स भेजे और ये कहा कि लेबनान के अंदर जो US हॉस्टेजेस हैं उसमें ईरान, हिजबुल्लाह के पास जो US हॉस्टेजेस थे उसमें ईरान हमारी मदद करे कि वो US हॉस्टेजेस रिलीज़ हो जाएं. ये लो ईरान, हेयर आर सम वेपन्स एक्सेट्रा, जाओ इराकियों को मारो और हमारे हॉस्टेजेस रिलीज़ कर दो. और वो वेपन्स उन्होंने दिए नहीं, बेचे उनको, ईरान को वो वेपन्स बेचे.
अब क्योंकि ईरान ने खूब पैसे लगाए उन वेपन्स को हासिल करने के लिए, तो उन वेपन से जो प्रॉफिट्स थे वो किधर गए, वो चले गए कॉन्ट्रास के पास। वो प्रॉफिट्स उन्होंने कॉन्ट्रास को भेजे कि ये लो तुम जंग करो अब सैंदिनिस्तास के खिलाफ। नाउ दिस वायलेटेड द बोलैंड अमेंडमेंट। कांग्रेस जो थी ना बाय दिस टाइम हैड सेड अंडर द बोलैंड अमेंडमेंट कि कॉन्ट्रास को वेपन्स और फाइनेंसिंग नहीं देनी है आपने, ये गलत अमल है। तो बोलैंड अमेंडमेंट ये थी कि कांग्रेस ने ये कहा कि भाई कॉन्ट्रास को पैसे नहीं देने, उनको आर्म्स नहीं देने, तो बड़ी सीरियस ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं। एमनेस्टी की रिपोर्ट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस की टन्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं एंड सो ऑन। मगर रेगन वाज प्रेसिडेंट, और आपको पता है ना कांग्रेस और प्रेसिडेंट की डिफरेंट पावर्स होती हैं, तो रेगन ने कहा कि नहीं मैं तो ये ज़रूर करूंगा। सो उसको वायलेट करते हुए उसने कॉन्ट्रा रेबल्स को इस तरह से ईरान कॉन्ट्रा अफेयर के थ्रू पैसे पहुंचाए कि भाई अपनी जंग वगैरह जारी रखो। ये इलीगल था, अंडर यूएस लॉ इलीगल था। And this was orchestrated by Oliver North, who was the National Security Council, and the CIA Director William Casey. और इसमें बहुत बड़ी हेयरिंग हो गई, कांग्रेशनल हेयरिंग हुई, जिसमें उन्होंने बुलाया कि भाई क्या कर रहे हो, हमने मना किया हुआ है, कांग्रेस ने मना किया हुआ है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये कैसे कर रहे हो। रेगन ने पहले कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता है, उनको पैसे मिले सानों की बात, मैंने तो कुछ नहीं पता। उसने टोटली डिनाई कर दिया। उसने कहा मैं तो बीमार था, मैं उस वक्त अस्पताल में था, मुझे तो याद ही कुछ नहीं कि मेरे से कोई बात भी हुई कि नहीं। मगर बाद में जब कांग्रेस के सामने सारी इन्वेस्टिगेशन हुई तो सब पोल खोल के बाहर आ गए और सारे हकायक बाहर आ गए कि अमेरिका बेसिकली वाज गिविंग देम मिलियंस ऑफ डॉलर्स कि जाओ जाके ये लड़ो। क्योंकि अमेरिका उस वक्त तक प्रिटेंड कर रहा था कि नहीं ये तो खुद ही हो रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो जी वो हम क्या कर सकते हैं, निकरागुआ में जो हो रहा है वो तो उनका अपना मसला है। तो दे वर प्रिटेंडिंग लाइक हमारे से इसका कोई ताल्लुक नहीं। बट वो सारी चीज़ 86 में बाहर आ गई इस कंग्रेशनल हियरिंग में, कॉल द ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल या अफेयर एक्सेट्रा। बहरहाल जी नुकसान तो जो निकरागुआ को होना था वो हो गया। 30 से कहते हैं 50,000 लोग उस जंग के अंदर 80s के अंदर जो कॉन्ट्रा के साथ वॉर थी वो मारे गए। छोटा मुल्क है, 30 से 50,000 बंदा बहुत ज़्यादा बंदा है फॉर निकरागुआ, यू कैन इमेजिन। और इकोनॉमी को अलहदा नुकसान, कोऑपरेटिव्स को नुकसान, इधर बम उधर बम, इधर चीज़ फट गई, उधर स्कूल तबाह, ये वो, इकोनॉमी को सख्त तरीन नुकसान, हाइपर इन्फ्लेशन, देयर वाज कंप्लीट एग्जॉस्शन। सो नाइदर द कॉन्ट्रास कुड विन नॉर कुड द सैंदिनिस्तास विन। दोनों जीत नहीं सकते थे, कॉन्ट्रास भी सैंदिनिस्तास को नहीं हरा सक रहे थे और सैंदिनिस्तास भी कॉन्ट्रास को नहीं हरा पा रहे थे। तो फाइनली उन्होंने ये कहा कि पीस डील कर लो। तो पीस डील वाज रीच्ड इन 87 एंड अनदर वन इन 88। इसमें डील ये हुई कि द सैंदिनिस्तास विल नो लॉन्गर सपोर्ट एनी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका। सैंदिनिस्तास वर सपोर्टिंग ऑफ कोर्स द मूवमेंट इन नेबरिंग एल साल्वाडोर। दे फेल्ट वेरी क्लोज टू दैट मूवमेंट, क्योंकि वो एक तरह के एक ही मूवमेंट थी, वो भी लिबरेशन थियोलॉजी उसी किस्म के आइडिया से इंस्पायर्ड थी। उनने कहा किसी और मुल्क में इनकलाब नहीं करना, पीस डील की ये शर्त है। और ऑब्वियसली फिर आर्मी ले डाउन योर वेपन्स, और किसी को मारना नहीं है, कोई इंतकाम नहीं लेना, रिवेंज नहीं करना, जो हर पीस डील का हिस्सा होता है, एंड सो ऑन। ये सब कुछ हमने करना है और प्रोफेशनल आर्मी कर देंगे और इलेक्शंस करेंगे और देखेंगे क्या होता है। हालांकि इलेक्शंस हो रहे थे रेगुलरली, 85 में इलेक्शन ओर्टेगा जीता था, तो 1990 में भी इलेक्शन होना था। मीनवाइल 1988 में एक बहुत बुरा हरिकेन आया और अगेन 180,000 पीपल होमलेस हो गए। उफ तौबा। तो हालात निकरागुआ के अंदर इस वक्त तक काफ़ी ख़राब हो चुके थे। इट वाज अ वेरी पुअर कंट्री, सफरिंग फ्रॉम हाइपर इन्फ्लेशन, होमलेस पीपल, कंप्लीटली वॉर ravaged एक्सेट्रा। देयर वाज अ लॉट ऑफ डेविस्टेशन। लो जी, जब इलेक्शन 1990 के अंदर हुआ तो द सैंदिनिस्तास लॉस्ट द इलेक्शन। ओए ओए ओए, सैंदिनिस्तास couldn't believe it. They couldn't believe they had lost the election. They were like stunned. They thought they would win because they were the revolutionaries. They were so popular, etc. उन्होंने समोसा डायनेस्टी को हटाया and they thought, और इतने लैंड रिफॉर्म भी किए और एजुकेशन और हेल्थ केयर, they thought they would win. But no, that didn't happen. US ने लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स को इकट्ठा किया, जो आपको पता है 19वीं सेंचुरी में लड़ते रहे थे, उनको इकट्ठा किया और एक अलायंस बनाया। और उस अलायंस ने बेसिकली FSLN को डिफीट कर दिया। एंड वायोलेटा चमोरो, हु वाज द विडो ऑफ द लिबरल पॉलिटिशियन ऑफ निकरागुआ, शी वाज द पर्सन हु वन दैट इलेक्शन, एंड शी इज इन फैक्ट द फर्स्ट फीमेल president in Latin America to win an election like that. So very happy we are, and you can see her right here, right next to Daniel Ortega, जो कि FSLN का लीडर है। FSLN was very gracious in this respect कि they didn't say कि ठीक है फिर हम कू कर देते हैं, ऐसी हम नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन हार गए, आप इलेक्शन जीत गए, तो आप अब प्रेसिडेंट आप ही हैं, एंड सो ऑन। सो वो पीछे हट गए।
and they said कि हम opposition में चले जाएंगे. So they went into the opposition, and from 97 till about 2007 10 साल basically जो liberal party थी वही dominate करती रही, मगर opposition के अंदर सैंदनीस्ताज अपनी जगह कायम रहे और presidency जो है वो basically liberals के पास थी. ये situation रही. इस पीरियड के अंदर बेचारे निकरागुआ के साथ और भी बैड लक हुआ. 92 के अंदर एक अर्थक्वेक हुआ, 16,000 बंदा होमलेस हो गया. 98 के अंदर एक और हरिकेन हुआ, उससे 3,000 डेथ्स हुई और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मजीद और होमलेस हो गए. अब तक थ्रू द 1990s वॉर भी ख़त्म हो गई, मगर फिर भी सब चीज़ों के बावजूद निकरागुआ की डेट जो है वो आसमान को छू रही थी. इंटरनेशनल डेट आसमान को छू रही थी. इट वॉज एट दैट टाइम इन दोज प्राइसेस $6 बिलियन. आज के लिए $6 बिलियन तो कुछ भी नहीं है. आज तो हम जाके $3 बिलियन की तो हम हर साल जाके हर 2-3 साल जाके डेट ले आते हैं. उस ज़माने में $6 बिलियन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. In fact, it was so large that it was 4 times the GDP of Nicaragua. यानी कि they owed 4 times their GDP to outsiders. Can you imagine? कि 4 साल अगर वो काम करते रहे, कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिएं, सारे पैसे बाहर देते हैं, तो 4 साल काम करने के बाद जाके वो अपनी डेट पे बैक करेंगे. This is not possible. So government spending, of course, was more on debt repayment than on health and education combined. Thank God Pakistan doesn't have that problem. Oh wait, we do have that problem. हम भी 56% जो है वो डेट रिसर्विसिंग पे करते हैं, खर्च करते हैं, और हेल्थ एंड एजुकेशन पे हम ठुट्ठू खर्च करते हैं, बहुत कम खर्च करते हैं. 2-3%, 5% से ज़्यादा नहीं हम खर्च कर पाते कभी भी. Anyway, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा कैंपेन हुआ कॉल्ड द जुबली डेट कैंपेन. इसमें सिविल सोसाइटी और NGOs और बहुत सारे लोग शामिल थे. उन्होंने कहा यार ये डेट तो बिल्कुल ही ओनरस है, ये डेट बिल्कुल अनफेयर है, टोटली अनजस्ट है, अनपेएबल है, और ये डेट ट्रैप में फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को. और जस्ट ड्रॉप द डेट, खत्म करो ये कमबख्त डेट. क्या करनी तुमने डेट लेके, वैसे तुम तो वैसे ही इतने अमीर लोग हो और अमीर कंट्रीज हो, इनको सत्यानाश कर रहे हो तुम, इन मुल्कों का तबाह कर रहे हो, उन मुल्कों को पस करो. बहुत बड़ा कैंपेन था. आप देख सकते हैं कि अभी भी जारी है बाय द वे, कि ये जो डेट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, इसको ख़त्म किया जाए. सो ड्रॉप द डेट वाज अ बिग पेमेंट, अनपेएबल, अनजस्ट. निकरागुआ वाज कंसिडर्ड द की कंट्री इन दिस डेट बिकॉज उसकी डेट वाज 4 times its GDP. सो इट वाज अ की कंट्री इन द डेट फॉरगिवनेस कैंपेन. लो जी, वर्ल्ड बैंक आया. वर्ल्ड बैंक ने कहा ठीक है, हम आपकी डेट फॉरगिव कर देते हैं, मगर हमारी भी शर्त है. हमारी शर्त ये है कि आपने न्यू लिबरल रिफॉर्म्स करने हैं. इसका मतलब ये है कि स्टेट एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर दो, पब्लिक सेक्टर को स्लैश करो, प्राइसेस को लिबरलाइज करो, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करो, डीरेगुलेट करो, वगैरह वगैरह, जो वर्ल्ड बैंक की टिपिकल पॉलिसीज़ होती हैं, IMF की टिपिकल पॉलिसीज़ होती हैं. उनने कहा ये करो. उन्होंने कहा ठीक है सरकार, हम करने के लिए तैयार है. जैसे आप कहते हैं माई बाप, लिबरल गवर्नमेंट इन पावर थी, वैसे भी उन्होंने काम करने के लिए तैयार है. उन्होंने ये किया. वर्ल्ड बैंक देन फॉरगेव 80% ऑफ निकरागुआ's डेट इन एक्सचेंज फॉर दिस लिबरलाइजेशन प्रोग्राम. और रशिया ने भी अपनी डेट्स कैंसिल कर दी. उन्होंने कहा चलो हम भी डेट कैंसिल कर देते. साढ़े तो भी, प्यूटन ने कहा साढ़े तो भी कैंसिल है कि तुसी मौज करो. तो निकरागुआ गॉट सम रिलीफ पा रहा है. मगर ऑल्दो द कंट्री गॉट रिलीफ, गरीबों को रिलीफ नहीं मिली. आयरनी ये है क्योंकि न्यू लिबरल रिफॉर्म्स के नतीजे में इन्फ्लेशन दोबारा से फैली. बेसिक फूड आइटम्स की प्राइसेस एकदम से बढ़ गई, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप प्राइवेटाइजेशन और प्राइस रेगुलेशन को छोड़ रहे हैं, प्राइसेस को आपने छोड़ा, एकदम से खाने की कीमतें वगैरह बढ़ गई. तो जैसे ये बढ़ी तो 2005 के अंदर मैसिव प्रोटेस्ट, स्ट्रीट प्रोटेस्ट दैट टर्न्ड वायलेंट, इरप्टेड इन निकरागुआ. सो डेट तो कम हो गई, मगर गरीबों की डेट नहीं ना कम हुई. मुल्क की डेट और होती है और गरीबों की डेट उसमें और होती है. तो पुअर केम आउट एक्सेट्रा, एंड दिस कॉज्ड the return of Ortega. Daniel Ortega not only returned, but returned and returned and returned again. 4 दफ़ा वापस आया. So back from he was the comeback kid. In 2006 he won with a very small 38% of the total votes cast. It's not ये कि उसकी बड़ी sweeping election था वगैरह. तो he won and he was allowed to be, of course, to be president of the country. By 2011 now, he won by 62% of the vote. His vote bank increased. In 2016, he won by 72% of the vote, and his wife, Rosario Murillo, became the vice president. In 2021, he won with 75% of the vote. So he became basically a vote-getting machine. He would make these broad coalitions, including with the Catholic Church, with conservatives, liberals, whoever he had to make with,
to basically win the popular vote. He was elected, as you can see, 4 times, and he is now one of the longest ruling leaders in all of Latin America. Of course, US and EU do not recognize these results. They always say कि ये फ़ोनी रिजल्ट्स हैं, ये मैनिपुलेट करता है इलेक्शंस को, ऑपोजिशन को ये रिप्रेस करता है, ओप्रेस करता है, इसने इलेक्ट्रल लॉज भी ऐसे बनाए हुए हैं, तब्दील किए हुए, इसने ऐसी डील्स की हुई हैं, ये करप्ट है, ये डिक्टेटर है, ये अथॉरिटेरियन है, और ये मैनिपुलेट करके जीत रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. बट बहरहाल इट सीम्स दैट ही इज़ able to win these elections nonetheless. That's his wife, by the way, standing next to him. IMF और World Bank के loans बहरहाल continue कर रहे हैं. They still deal with that, etc. They're not doing anything super radical as such. There's a kind of state-controlled capitalism. But Nicaragua has to deal with a neoliberal world क्योंकि socialist bloc तो अब उस तरह से है नहीं. So it's trying to deal with that neoliberal world. It's not trying to create revolution across Latin America जैसे वो 80s में कर रहे थे and so on. But they nonetheless have very close ties with Russia as well as with China, also with Cuba and Venezuela. Venezuela में जब oil boom हुआ under Hugo Chavez तो उन्होंने बहुत निकरागुआ को बहुत support किया जिसकी वजह से Nicaraguan economy actually did quite well in those years. And Nicaragua is very much part of the leftist countries of Latin America. 3 बड़े लेफ्टिस्ट कंट्रीज़ हैं, बेसिकली क्यूबा, वेनेजुएला और निकरागुआ. ये लेफ्ट ब्लॉक है लैटिन अमेरिका. वैसे और कंट्रीज़ भी ऑब्वियसली इसमें हैं, मगर कंसिस्टेंटली जो लेफ्टिस्ट कंट्रीज़ हमें नज़र आ रही हैं, सबसे कंसिस्टेंट तो क्यूबा है ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो वेनेजुएला एंड लैटिन अमेरिका फॉर द लास्ट 20 years or so. Nicaragua has recovered economically, especially under Ortega, which is why I think he continues to win the elections. क्योंकि जो डेवस्टेशन हुई ना इस पूरे पीरियड के अंदर, 80s के अंदर जो इकोनॉमिक डेवस्टेशन हुई, और 90s के अंदर भी कोई ख़ास रिकवरी नहीं हुई, कभी अर्थक्वेक आ जाए, कभी हरिकेन आ जाए, और इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा और डेट इतनी ज़्यादा एंड सो ऑन. सो एक तलब थी निकरागुआ की पब्लिक के अंदर कि हमने इनकलाब बहुत कर लिया है, अब हमने इकोनॉमिकली रिकवर करना है, तो जो भी इकोनॉमिक रिकवरी करके दिखा सकता है हमने उसको जो है वो वोट डालना है. मेरी ये एनालिसिस है ऑफ निकरागुअन पॉलिटिक्स. दैट इज़ वाई Ortega continues to win the election. Because देखो, from 2007 when he came back to power for 1 decade till 2017, 4.2% rate, average rate of growth every year, which is really quite good for over a period of a decade, etc. COVID के period के अंदर severe contraction हुई, in fact -1.8% पे economy चली गई, मगर ये worldwide trend भी था. और immediately 2021 में जब कोविड पीरियड वगैरह ख़त्म हुआ तो हमने देखा कि द इकोनॉमी बाउंस्ड बैक टू 10.3% growth rate, which is phenomenal, which is really fantastic. Poverty right now is at 12.5%. Literacy is at 82%. Wow, that's still amazing. So some of the gains of the revolution have not been lost. Life expectancy is at 74%, and HDI ranking of Nicaragua is at 130. पाकिस्तान से आगे हैं. हालांकि this is a country that went through civil war, earthquakes, hurricanes, and the worst thing you can ever imagine. मगर वो फिर भी हमसे आगे निकल गए हैं या हमसे आगे हैं despite suffering all of these problems, etc. Remittances are 28% of GDP. So they get a lot of money from remittances, etc. And they also trade with the United States of America because they're not exporting revolution and they're not doing anything overly radical in their own country. So America ने कहा ठीक है, we will have relations with Daniel Ortega, and they have trade of about $8 billion with the United States of America. Anyway, at the end, all I can say is that this beautiful country of magnificent volcanoes and absolutely gorgeous lakes, may it continue to prosper and may its people continue to prosper. That is the story of Nicaragua for you. एक ऑब्जर्वेशन मेरी तरफ से भी ले लें फिर कि अगर आप देखें कि जितनी भी 60s और 70s की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थी उनका आप एनालिसिस करें, चाहे आप पैलेस्टीनियन मूवमेंट PLO का एनालिसिस करें या आप सैंडिनिस्तास का करें या आप क्यूबन रेवोल्यूशन का करें या चिले का करें, जिस तरह मैंने ग्वाटेमाला का करें, तो आप देखेंगे कि ओवर टाइम यही हुआ है. इस केस में तो द ओरिजिनल लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन केम बैक, बट इन मोस्ट इंस्टेंसेस नॉट नेसेसरली द ओरिजिनल लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन हु कम्स बैक, मगर वो पार्टी वापस आ गई इक़्तिदार में. मगर जो उसका सेकंड रन हुआ है 90s के बाद का, लेट्स से 90s या 90s के बाद का, उसमें वो डी रेडिकलाइज हो गई है मूवमेंट. इस वजह से नहीं क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो डी रेडिकलाइज हो जाए, इस वजह से नहीं कि वो कोई बिट्रेयल था कि ओए यार कोई तरीका निकालते हैं पैसे बनाने का. ये नहीं है प्रोसेस,
क्योंकि हमें ये चिले में भी नज़र आता है, हमें ग्वाटेमाला में भी नज़र आता है, इनफैक्ट हमें क्यूबा में भी नज़र आता है कि इस वक्त क्यूबा इज़ नॉट द रेडिकल क्यूबा इट यूज्ड टू बी इन द 1960s एंड 70s। मगर उसकी बेसिक वजह यही है कि अमेरिका ने जो इस प्रोसेस को रोकने के लिए जो कुछ भी किया, जैसे भी किया, एक तरफ इकोनॉमिक वॉर थी, एक तरफ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, एक तरफ सिविल वॉर पैदा कर दो, CIA ऑपरेशन से बंदे मरवा दो, असैसिनेट कर दो, गवर्नमेंट्स ओवरथ्रो कर दो, जो भी है, उसका जो इम्पैक्ट हुआ है ऑन लैटिन अमेरिका वो यही है कि ये जो रेडिकल मूवमेंट्स उभरी 60s और 70s की, एक पॉइंट पे तो इनको टोटली बैकफुट पे जाना पड़ा, कुछ पॉइंट्स पे तो इनको टोटली डिफीट कर दिया गया और they were out of power. They came into power, they came out of power as well. Like Chile is a good example, right? Dictatorships कायम हो गई, इनको फ़र्क कर दिया. But in many instances, they also came back to power. But their second iteration, so to speak, the return of these movements to power, etc., was a return in which they were much more cautious, much less radical than they were in the 60s and 70s, much less willing, let's say, to attack the United States of America or the vital interests of the United States of America in the same way as they had challenged them in the 1970s, etc. They had become significantly de-radicalized, in other words. But this is not of their own doing. That has to be recognized. It's very important for us to recognize that this is not a consequence of the fact that leader corrupt हो गए, ईमान नहीं ताज़ा था, ईमान ठीक नहीं था, ऑनेस्टी नहीं थी, डिसऑनेस्टी, इस तरह की एक्सप्लेनेशंस हमें हर वक्त जो है ना पाकिस्तानियों को सुनाई जाती हैं। ये नहीं मसला, मसला वही है कि वी थिंक परहैप्स, आई वाज थिंकिंग जब मैं क्लास आ रहा था कि यू नो इन आवर इमेजिनेशन समटाइम्स वी थिंक दैट द पब्लिक हैज़ एन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ रेवोल्यूशनरी इंथुजियाज्म, कि अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बस पब्लिक तो इनकलाब ही करते करते बढ़ जाएगी. एंड आई थिंक सम ऑफ दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड बाय सर्टन प्लेसेस इन विच इट डिड सीम टू बी ऑलमोस्ट इनएग्जॉस्टिबल. फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जब हम वियतनाम को कवर करेंगे कि वहाँ तो ऐसे महसूस होता है कि यार ये कमबख्त लोग ये हार ही नहीं मानते, इन पता नहीं क्या इनको प्रॉब्लम है. मैं आई बीन टू वियतनाम बाय द वे. I mean, it is just, they really do seem to have an inexhaustible supply of revolutionary enthusiasm कि इन्होंने मानना ही नहीं, जो मर्जी इनके साथ कर लो, ये इन्होंने हिलना ही, टस से मस नहीं होना. But it's not actually correct to say that the public is inexhaustible in this way. The public can be exhausted, even the poor, downtrodden can become exhausted. 10 साल सिविल वॉर चल रही हो, आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, आप अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकते, घर में आटा नहीं है, रोटी नहीं है, 13,000% इन्फ्लेशन शुरू हो जाए, पैसे की वैल्यू उड़ जाए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तो एट सम पॉइंट और अनदर पब्लिक कैन से कि ओर्टेगा साहब इनकलाब बहुत कर लिया, नहीं हो सकता इस वक्त, हम नहीं जीत पा रहे. तो 1990 में जो उनकी इलेक्टरल डिफीट थी, उसकी वजह से FSLN and Ortega basically got the signal कि public is exhausted. Public is not supporting us anymore in this revolutionary process. We have to moderate, take one step back to win the public back. Ortega ने एक कदम पीछे तो हटाया है. For that reason, even leftists उसको ये कहते हैं कि तुमने betray कर दिया. जिस चीज़ के खिलाफ तुम लड़ रहे थे अपनी जवानी में, वो खुद ही तुम चीज़ बन गए हो अपने बुढ़ापे में आके. तो to some extent that criticism is valid as well. But on the other hand, we also have to recognize as social scientists that the reason for that was the exhaustion that set into the Nicaraguan public by the 1990s, owing to which the Nicaraguan public no longer supported the FSLN, but had switched its loyalty. And it said there was a substantial public that was supporting the FSLN, but there was also a substantial public which was saying कि बस और नहीं. So you have to step off. So when he stepped off the gas and went towards a little moderate sort of policy, he seemed to have won back the support of the public. What will happen next, in a next phase of history, who knows? That will be interesting to see.